Okay, so human nervous system controls and coordinates activities of our body. Our body is composed of 11 organ systems. So nervous system is the system associated with the control and coordination of all the organ systems of our body. Nervous system जो humans में है, it consists of, let us say for example this is a human being. This is a human being and this is the brain, cerebrum, this is the pons viruli, this is the medulla oblongata medulla oblongata also, this collectively is called as brain, and this is the spinal cord. So human nervous system जो है, nervous system, it consists of two parts. One is called as central nervous system, another is called as peripheral nervous system. Central nervous system or CNS, peripheral nervous system or PNS. Central nervous system consists of brain and spinal cord. जिस तरीके से कंप्यूटर में central processing unit होता है which controls the activity of all the parts of a computer, likewise brain and spinal cord are the operating mediums of human nervous system. Brain is located in the head in a box called as brain box, वो brain box में होता है, और it's also called as cranium. और spinal cord जो है it descends down through the backbone जो होती है, या vertebrates में जो vertebrae होती है backbone, उसके through it goes down, right? This is the central nervous system. Peripheral nervous system जो है, peripheral nervous system it consists of nerves, right? तो nerves जो हैं, nerves दो तरीके की होती हैं. We have got कुछ nerves जो हैं वो associated होती हैं brain के साथ. For example यहाँ से आँखों में एक nerve आ गई, यहाँ से नाक में दूसरी nerve आ गई, तीसरी cheek muscles पे आ गई, टंग पे आ गई, गर्दन में आ गई, या let us say for example हमारी जो है kidneys पे चली जाती है एक nerve. तो these nerves which emanate from the brain are called as cranial nerves, क्योंकि वो cranium में से निकलती हैं. cranial nerves total में हमारे पास होती हैं 12 pairs. These are in pairs, 12 pairs. olfactory nerve है, oculomotor nerve है, vagus nerve है, optic nerve है, ये सारी चीज़ों के नाम आपने सुने होंगे. नर्व्स में दूसरा आता है वो वाली नर्व्स विच आर एसोसिएटेड विद द स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं. तो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से निकल के दे इनरवेट द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. दीज आर कॉल्ड एज स्पाइनल nerves. तो if I remember correctly there are 31 pairs of spinal nerves. spinal nerves भी pairs में होती हैं. एक जो है इस हिस्से में चली जाती है, दूसरी इस हिस्से में चली जाती है. So we have different types of nerves. You do not have to study the names of all these nerves. ठीक है. तो nerves जो हैं, nerves हो सकती हैं दो तरीकों की. nerves या तो हो सकती है sensory या तो हो सकती हैं मोटर नर्व्स. सेंसरी वो वाली नर्व्स हो गई जो इंफॉर्मेशन ले जाएं. लेट अस से फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए ह्यूमन आर्म, राइट? लेट अस से तो ह्यूमन आर्म से अगर इंफॉर्मेशन जा रही है इनटू द ह्यूमन आर्म से इंफॉर्मेशन जा रही है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड इनटू द ब्रेन, तो एक तो वो नर्व होगी जो ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके जाए ब्रेन तक. दूसरी वो नर्व हो गई जो ब्रेन से फिर रिस्पॉन्स लेके आए. तो स्टिमुलस जो है वो एक तरीके की नर्व से अचीव होता है, रिस्पॉन्स जो है वो दूसरी तरीके की. तो जो
Let us say for example you accidentally touch the bottom of an iron, hot iron. तो जैसे ही आप टच करते हो, you sense heat, infrared radiation is being emitted by the iron. जैसे ही आपको सेंस होता है हीट, तो what you do is you abruptly and rapidly you remove your hand from the hot surface. क्या हुआ था इसमें कि आपने जब हाथ लगाया तो आपके थर्मो रिसेप्टर जो स्किन में हैं, दे सेंसड हीट, दे क्रिएटेड एन इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स. वो इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स आपके बाजू के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ट्रैवल किया आपके ब्रेन में, एंड इट ऑल्सो ट्रिगर्ड द पेन रिसेप्टर, जिसकी वजह से आपको पेन महसूस होती है. तो ये तो इन्फॉर्मेशन वहाँ से चली गई थी ब्रेन में. फिर ब्रेन में एक डिसीजन आता है कि, या स्पाइनल कॉर्ड से एक डिसीजन आता है कि आपको हाथ हटाना है वहाँ से. तो वो जो डिसीजन है वो स्पाइनल कॉर्ड से कन्वे किया जाएगा मसल्स को, उनको कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, विच मेक्स यू रिमूव योर हैंड. तो एक तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से कोई भी ऑर्गन जो है वहाँ से ब्रेन में चली गई थी. दिस इंफॉर्मेशन इज़ कन्वेड बाय द सेंसरी नर्व्स. अगर ब्रेन से इंफॉर्मेशन आ जाए किसी भी ऑर्गन में, तो दिस इज़ डन बाय द मोटर nerves. I hope you do understand this. Our next topic is, central nervous system consists of central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system consists of brain and spinal cord. Now peripheral nervous system जो है, peripheral nervous system में दो हिस्से होते हैं. It consists of two parts. एक को कहा जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS. दूसरा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब विच इज़ इनवॉलेंटरी. आपका हार्ट अभी बीट हो रहा है, आपने फूड जो इससे पहले खाया था वो आपके इंटेस्टाइन्स में से मूव हो रहा है, आपका ब्लड कंटिन्यूसली गर्दिश में है. तो ये जो सारी चीज़ों का मोमेंट है, इट इज़ कंट्रोल्ड इनवॉलेंटरीली. यू डू नॉट हैव द कॉन्शियस नॉलेज या कॉन्शियस कंट्रोल ओवर ऑल दीज प्रोसेसेस. सो दिस इज़ कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज़ द सोमा मतलब बॉडी, बॉडीली नर्वस सिस्टम. जो भी आपकी स्केलेटल मसल्स हैं जिनको आप मूव कर सकते हो वॉलेंटरली, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय योर सोमैटिक नर्वस सिस्टम. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, इसके आगे और दो टाइप्स हो जाते हैं विच आर नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस बट यू कैन नो इट. एक को बोलते हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है parasympathetic nervous system. A simple example, if you are moving through a jungle and all of a sudden you encounter a ferocious tiger. तो क्या होता है कि अचानक से आपका दिल तेज़ धड़कने लगता है, आपकी पिपल्स जो हैं वो डायलेट होने लग जाती हैं, आपकी बॉडी रीइंफोर्स होती है एनर्जी से, योर होल बॉडी रीइंफोर्स विद एनर्जी, एंड all of a sudden all the pain, all the tiredness, fatigue is gone, right? तो you become tremble with fear, और आपके मन में या तो भाग जाने का या डर जो है वो बस जाता है. दैट इज़, ये जो पूरा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, इट इज़ इवोक्ड बाय सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. बट देन यू सी द लायन गोइंग अवे. आप जैसे ही देखते हो कि वो आपके साथ नहीं छेड़ रहा है, वो जा रहा है, नदी क्रॉस कर रहा है, उसके वापस आने का कोई चांस नहीं बनता, तो योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम comforts you, right? Comforts you. This is done automatically. You do not have a voluntary control over it. Somatic nervous system जो है, मैंने बताया, somatic nervous system is bodily nervous system. It is a nervous system associated with your skeletal muscles, part of the nervous system या part of the nerves associated with your skeletal muscles, जिनसे आप body movements, hand की movements, finger की movements, your lip movements, tongue movements, vocal cord की movements, या let us say shoulders की movements, belly portion की movements. That you must have seen a dancer. A dancer is a dancer जो है वो almost जो भी body part को move करता है, he does it with a conscious effort, with a volunteer, with his own will. तो वो जो part of the nervous system है, that is called as somatic nervous system. We'll talk about what nervous system is composed of. तो नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है सेल्स का, विच आर कॉल्ड एज न्यूरॉन्स.
न्यूरॉन्स जो हैं दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी न्यूरॉन्स जो है कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे किसी ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचे या ब्रेन से ऑर्गन तक पहुंचे, इट इज़ ऑल टुगेदर ट्रांसमिटेड थ्रू दीज सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स, राइट। न्यूरॉन जो है इसके बारे में और एक बात है दैट इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल्स, इट इंक्लूड्स द लॉन्गेस्ट सेल्स इन द बॉडी। जैसे आपके शरीर में जो यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन निकलता है वो आपके लेग्स में टोज़ में चला जाता है, तो वो सबसे बड़ा न्यूरॉन है। इट कैन बी अप टू 1 मीटर इन लेंथ, राइट, इट कैन बी अप टू 1 मीटर। सो इट कंटेन्स द इट्स द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी, राइट। और न्यूरॉन जो हैं दे कैरी इम्पल्सेस, कैरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ impulses which are called as neuronal impulses। वो छोटे छोटे इलेक्ट्रिक करंट्स जो है मूव होते हैं इनके थ्रू। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, आपको एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन राइट इम्पॉर्टेंट। आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन्स पूछा जा सकता है। ड्रा वेल लेबल डायग्राम ऑफ ए न्यूरॉन। आपने 9th क्लास में सेल तो देखी होगी, यूजुअली जो आपको टीचर सिखाते हैं। एक स्फेरिकल सेल होती है, स्फेरिकल सेल विच लेट अस से फॉर एग्जांपल ये इस तरीके की सेल आप लोगों ने देखी हुई है जिसमें एक न्यूक्लियस रहता है, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज रहते हैं, साइटोप्लाज्म एटसेट्रा रहता है। तो दिस आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूरॉन में क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट्स स्ट्रेचड लाइक दिस एंड फॉर्म्स these hair like projections, right? These are called as neuronal processes, ठीक है। तो we have the plasma membrane being stretched like this, और इन hair like projections में एक hair जो है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है, और वो end जब होता है तो end वो कुछ ऐसे होता है, राइट।